Hello students, in today's topic we have to discuss MCQs of lesson number 12 aldehyde ketones and carboxylic acid, and today's video are contain the topic oxidation of aldehydes and ketones, means tolerance test, Fehling test, Benedict test and Popov rule, iodoform test. Then after we have to discuss about the acidic strength of carboxylic acid, and finally we have to discuss about the aldol condensation, Cannizzaro condensation and cross aldol condensation. So these are the important topic of lesson number 12. So friends, we have to discuss these all topic, right? First of all, you have to take the printout of the PDF which is given in our website. So you have to first visit our website and take the printout. Here there will be 29 MCQ of all these topics, right friends? So first of all, we have to discuss the topic oxidation of aldehydes and ketones. So here some basic concept is given to you. Tolerance test, which is known as a silver mirror test. This test is given by only aromatic and aliphatic aldehydes like formaldehyde, acetaldehyde and benzaldehyde. Ketones are not able to perform this test, मतलब एसीटोन है either acetophenone है, वो ये टेस्ट देते नहीं है. And during this test we have to use the mixture of NH4OH plus AgNO3, ammonium hydroxide plus silver nitrate. This mixture is known as a ammonical silver nitrate. After the end of this reaction, silver is obtained in a test tube. So this test is also known as a silver mirror test. So this is the basic concept about the tolerance test. Now friends, we have to discuss about the Fehling's test. Fehling's test, we have to use two type of solution for oxidation of aldehydes. Fehling A, which is aqueous solution of copper sulfate. Fehling B, it is a mixture of sodium potassium tartrate plus NaOH. When these two mixtures react with aldehyde, it gives the red precipitation of cuprous oxide and aldehyde is converted into carboxylic acid. Now only aliphatic aldehydes are able to give this reaction. मतलब formaldehyde और acetaldehyde दे सकते हैं, लेकिन aromatic aldehydes and ketones are not able to give this test. मतलब ये जो benzaldehyde है और ये ketones एसीटोन है, either acetophenone है, ये लोग ये टेस्ट देते नहीं हैं. ओके फ्रेंड्स, Fehling टेस्ट जैसा ही दूसरा एक टेस्ट है दोस्तों, बेनेडिक्ट टेस्ट. बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर instead of sodium potassium tartrate we have to use the sodium potassium citrate. Okay, now friends, and the third one is Popov rule oxidation of ketone. टॉलेंस टेस्ट और फेलिक्स टेस्ट से कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, लेकिन पॉपॉव रूल विच इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन. तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे पेंटेन 2 अवेलेबल है. ये पेंटेन 2 का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस के अंदर, इधर KMnO4/H2SO4 भी मैं ले सकता हूं. तो पॉपॉव रूल क्या बोलता है कि कार्बोनिल ग्रुप, मतलब जिसके पास C डबल बॉन्ड और ग्रुप अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप. उसकी जो साइड पे कम कार्बन है वही कार्बोनिल ग्रुप के साथ जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप की लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप CH3 के साथ ही रहेगा, बराबर. तो ये CH3 के साथ रहेगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन. तो क्या होगा, CH3CO, एक ऑक्सीजन आया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हो गया CH3COOH. और बाकी का पार्ट में क्या रहेगा, तो ये CH3, ये CH2 और बाकी रहा ये CH. इसके अंदर 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, वी कैन गेट प्रोपेनोइक एसिड. तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय पॉपॉव रूल. लेकिन अगर इसका अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा गया दोस्तों, तो माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा, तो एक क्लेवेज इस तरह से होगा, ब्लू कलर का लाइन देखने का. अगर एक कीटोन ग्रुप यहाँ रहेगा तो 4 कार्बन है तो वी कैन गेट ब्यूटेनोइक एसिड, और यहाँ एक कार्बन है तो वी कैन गेट फॉर्मिक एसिड. तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो मैंने दोस्तों यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे बनाए हुए हैं जो आपको पूछ सकते हैं, इधर उसके जैसे दूसरे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं. तो देखो पहला क्वेश्चन है, which of the following compound is able to give tolerance test.
आपको जो कंपाउंड दिए उसमें से कौन कौन से टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजाल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन 2-1 और लास्ट ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो दोस्तों ये रहा आपका बेंजाल्डिहाइड, बराबर। दूसरा है एसिटाल्डिहाइड, ये रहा। तीसरा है ब्यूटेन 2-1। ब्यूटेन 2-1 का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CO CH2 CH3। ये हो गया आपका कीटोन, बराबर। तो कीटोन ये टेस्ट देता नहीं है, तो आपका आंसर आएगा ए एंड बी बोथ। इज इट क्लियर? टॉलरेंस टेस्ट पूछा है इसलिए। अब पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एबल टू गिव टॉलरेंस टेस्ट। सेम ऑप्शन बेंजाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ब्यूटेन 2-1 एंड ए एंड बी बोथ। तो अब आपका आंसर हो जाएगा क्या, ब्यूटेन 2-1। ओके, ब्यूटेन 2-1 की जगह अगर पेंटेन 2-1 बोला होता तो भी आपको यही आंसर आता है, क्योंकि कीटोन कोई भी टाइप का टॉलरेंस टेस्ट दे सकता नहीं है, केफेलिन टेस्ट भी देता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एबल टू गिव फेलिन टेस्ट। ब्रैकेट में मैंने बेनेडिक्ट टेस्ट भी लिखा है, क्योंकि फेलिन टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस सिमिलर मिलता है। तो फेलिन टेस्ट कौन देता है दोस्तों, सिर्फ ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर एबल टू गिव दिस टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन सेम है, बेंजाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, ब्यूटेन 2-1 एंड ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन है, सिर्फ आपका एसिटाल्डिहाइड है। तो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड क्या करेगा, इसका टेस्ट दे सकता है। बेंजाल्डिहाइड और ब्यूटेन 2-1 फेलिन टेस्ट आइदर बेनेडिक्ट टेस्ट देता नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एबल टू गिव फेलिन टेस्ट। सेम ऑप्शन बेंजाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ब्यूटेन 2-1 एंड ए एंड सी बोथ। तो आपका आंसर क्या आएगा, बेंजाल्डिहाइड ए है, ब्यूटेन 2-1 सी है। बेंजाल्डिहाइड भी नहीं देता है, ब्यूटेन 2-1 भी नहीं देता है, इसलिए आपका आंसर आएगा डी, ए एंड सी बोथ। ओके दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एबल टू गिव पॉप-ऑफ रूल। तो पॉप-ऑफ रूल से दोस्तों इजी ऑक्सीडेशन किसका होता है, कीटोन्स का होता है, बराबर। तो देखो बेंजाल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ये रहा, बराबर। एसिटाल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड है और ब्यूटेन 2-1 कीटोन है। तो कौन इजीली टेस्ट देगा, तो आपका आंसर आएगा सी, ब्यूटेन 2-1, राइट। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पॉप-ऑफ रूल ब्यूटेन 2-1 गिव्स व्हिच मेजर प्रोडक्ट। तो ये ब्यूटेन 2-1 का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे इसके साथ कंसंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हो, आइदर कोई अगर ऐसा करे KMnO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 ले ले, इससे भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो मैंने बोला था वो हिसाब से पॉप-अप रूल क्या बोलता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जो साइड पे लेस नंबर ऑफ कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, वो साइड पे ही रहेगा, बराबर। तो ये CO ग्रुप यहाँ रहेगा, तो आपको मिलेगा CH3CO। ऑक्सीडेशन मतलब एक ऑक्सीजन ऐड करो और यहाँ से हाइड्रोजन लगा दो, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। अब मेरे पास यहाँ दो कार्बन बाकी रहे, तो ये CH3, ये C, ये H और दो ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में डाल दो, तो वी कैन गेट 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। समझ में आया? तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो आपका क्लेवेज इस तरह से होता, तो यहाँ CH3 बाकी रहेगा, तो ये फॉर्मिक एसिड देगा, और यहाँ 3 कार्बन है तो वो देगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इसलिए आपका आंसर आएगा क्या, एसिडिक एसिड। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड आपका आता। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू पॉप-अप रूल 2-pentanone either pentane 2-1 gives which major product। ये pentane 2-1 का मेजर प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो आपका आंसर आएगा क्या, ए एंड बी बोथ, बराबर। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो आपका आंसर आता ब्यूटेनोइक एसिड। तो 7th वन के अंदर आंसर क्या होगा आपका, ए एंड बी बोथ। तो दोस्तों ये सातों क्वेश्चन के अंदर बाकी के क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बात समझाई। दोस्तों ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अच्छी तरह से चेक कर लेने का। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। Now students, we have to discuss about the iodoform test, which is known as a reaction of aldehydes and ketones with sodium hypohalites, right?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज मेरे पास ऐसा एक एल्डिहाइड है CH3CHO, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड और उसका आईयूपीएसी नेम है इथेनॉल, राइट फ्रेंड्स। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C+OH। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कार्बोनिल ग्रुप के एग्जैक्ट बाजू में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप जिसके अंदर अवेलेबल होगा वही आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये आपको पहली बात याद रखने की है। दूसरी कंडीशन आपको याद रखने की है, सम अल्कोहल्स जिसके अंदर ऐसा पार्ट हो CH3CHOH, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और एक चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नेवर गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब आपके पास कोई एसिड है COOH है, फिर एस्टर्स है RCOR है, एसिड क्लोराइड है RCOCl है, एमाइड्स है, दे आर द एनहाइड्राइड्स है RCO2O। ये कोई भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते नहीं है, ओके। तो क्या क्या याद रखने का, एक कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में CH3 ग्रुप होना चाहिए और दूसरा CH3CHOH पार्ट जिसके अंदर होगा वही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी डेरिवेटिव्स जो है दे आर नेवर गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बराबर। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर्स हो, एनहाइड्राइड हो, एसिड क्लोराइड हो, इधर एमाइड्स हो, वो लोग कभी भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते नहीं है, बराबर। अब इसके रिएक्शन समझते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में इसका रिएक्शन होगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जब ये रिएक्शन होगा तो मिल जाएगा दोस्तों NaOX। ये जो NaOX है इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइपोहैलाइड, राइट। तो यहाँ पे मुझको लेना पड़ेगा 3 आयोडीन। तो ये 3 हाइड्रोजन है, 3 आयोडीन के साथ जाके माइनस करेंगे 3HI और 3 आयोडीन यहाँ ऐड हो जाएंगे CI3 C डबल बॉन्ड OH और उसका NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये जो पार्ट है वो हाइड्रोजन के साथ जाके बनाएगा CHI3, वो येलो प्रेसिपिटेशन होंगे दोस्तों, राइट। और बाकी का जो पार्ट है वो रहा H C डबल बॉन्ड ONA जिसको आप बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे? सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह से दोस्तों आयोडोफॉर्म टेस्ट हमको जज करने का है। ये इस तरह से आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, बराबर। तो अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाते हैं दोस्तों। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एबल टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। और ऑप्शंस है, सबसे पहला ऑप्शन 8वां क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए है आपका दोस्तों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी है आइसोपेंटाइल अल्कोहल CH3 CH3 CH2 CH2OH। ऑप्शन सी है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3C CH3 CH3OH। एंड ऑप्शन डी जो है आपका वो है नियोपेंटाइल अल्कोहल CH3C CH3 CH3 CH2OH। तो दोस्तों अल्कोहल जब है तो हमको ये फॉर्मेट देखने का जिसके अंदर CH3 CHOH पार्ट होगा। अब देख सकते हो ये जो है CH3 CHOH पार्ट है, मतलब ऑप्शन ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब इस बाकी के ऑप्शन के बारे में सोचो कि ये CH2OH है लेकिन यहाँ पे आगे CH3 होना चाहिए, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो CH3CH होना चाहिए लेकिन यहाँ पे H नहीं है, इसलिए ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे CHOH बन सकता है, ये H को अगर मैं नीचे लिखूं, लेकिन आगे CH3 होना चाहिए, आगे CH3 नहीं है, मतलब ये आपका जो डी ऑप्शन है, कौन सा, नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये भी आपका पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट देता नहीं है। तो 8वें क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि ये आपका क्या होगा, आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वो है which of the following compound is able to give iodoform test, और उसके ऑप्शन है इथेनॉल, पहला ऑप्शन है इथेनॉल, CH3CH2OH। इसमें अगर H को मैं अगर नीचे लिख दूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा CH3CH और OH। तो इसके अंदर का ये पार्ट आप चेक करो, इसके साथ मैच होता है, मतलब इथेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। उसका दूसरा ऑप्शन है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH, यहाँ CH3 इसके बाजू में है ही नहीं, मतलब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं। सी ऑप्शन ब्यूटेनॉल, CH3CH2CH2 CH2OH, यहाँ ये जो CH है इसके बाजू में यहाँ CH3 होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, वो एब्सेंट है, इसलिए ब्यूटेनॉल भी ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कौन सा है, नन, मतलब इसके अंदर इथेनॉल जो है वो आपको क्या देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following compound is able to give iodoform test? उसमें सबसे पहले लिखा है लैक्टिक एसिड। दोस्तों एसिड जब वर्ड आए तो आपको समझने का वो कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं, बराबर। लैक्टिक एसिड का जो ऑप्शन है वो हम चेक करें, ऑप्शन ए, वो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा CH3CHOH COOH। देखो दोस्तों इसमें ये पार्ट अवेलेबल है, फिर भी वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है, बराबर। ओके, बी ऑप्शन देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड जो है ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड होगा, इसमें भी ये पार्ट अवेलेबल है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है, बराबर। सी ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी कौन सा है, ब्यूटेन 2 तो CH3CH2COCH3। तो आप यहां से राइट साइड से चेक करो, यहाँ पे CH3CO ग्रुप अवेलेबल है, मतलब ये टेस्ट देगा, और डी ऑप्शन है ऑल। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, CH3CH2COCH3 ब्यूटेन 2 जो है वो आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। अब हम दोस्तों आगे का क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अंदर ऐसा मेंशन किया गया, which of the following compound is able to give iodoform test। सबसे पहले लिखा है ब्यूटेन 2 ऑप्शन ए जो है उसमें लिखा है ब्यूटेन 2 जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। दूसरा फिनॉल, फिनॉल का मतलब बेंजीन के ऊपर OH। तीसरा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और ऑप्शन डी जो है वो मिथेनॉल, ऐसा लिखा है CH3OH। तो देखो इसके अंदर दोस्तों ये पार्ट अवेलेबल है CH3CHOH, मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिनॉल में ऐसा पार्ट नहीं है, इसमें भी ऐसा पार्ट नहीं है, और मिथेनॉल में भी ऐसा पार्ट आता नहीं है, मतलब बी, सी और डी ऑप्शन आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, अब आएगा आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, which of the following compound is able to give iodoform test? Which of the following compound is able to give which test? Iodoform test। तो दोस्तों iodoform टेस्ट कौन देगा यहाँ पे, 12th नंबर का क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड का मतलब CH3CHO। ऑप्शन बी जो है वो है बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO। ऑप्शन सी जो है वो है प्रोपियोनाल्डिहाइड, CH3CH2CHO। और ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ ये पार्ट आ गया CH3C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल ग्रुप आ गया। मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी के कोई भी ऑप्शन आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते नहीं है, बराबर। और 13 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एबल टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो एसीटोन है पहला ऑप्शन। एसीटोन का मतलब CH3COCH3। दूसरा ऑप्शन है आपका एसिटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ब्यूटेन 2,1 CH3COCH2CH3। और लास्ट ऑप्शन दिया गया ऑल। देखो यहाँ पे CH3CO पार्ट अवेलेबल है, देगा। यहाँ पे भी COCH3 पार्ट अवेलेबल है, देगा। यहाँ पे भी CH3CO पार्ट है, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब आपका आंसर आएगा ऑल कंपाउंड्स आर एबल टू गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, ये तो हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट के रिगार्डिंग एमसीक्यू खत्म हुए। लेकिन कभी कभी कोई कंपाउंड ऐसा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COCH3, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस। यहाँ पे देख सकते हो CH3CO पार्ट अवेलेबल है, इसलिए वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। भले यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं है उसके साथ कोई मतलब नहीं है, बराबर। सपोज ऐसा कंपाउंड है CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3, क्या ये कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो आपका आंसर आएगा यस, क्योंकि यहाँ पे कौन है CH3CO ग्रुप अवेलेबल है। कार्बोनिल ग्रुप की बाजू में मिथाइल ग्रुप जब अवेलेबल होता है तब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। और याद रखने का क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसकी डेरिवेटिव्स मतलब एस्टर्स, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड एमाइड, वो कभी भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से एक क्वेश्चन याद रखने का, जब भी आपको नाम लिखा हुआ देता है तो आपको उसके ऊपर से उसके फॉर्मूला भी बनाने का आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसके अंदर के कुछ बेसिक पैरामीटर्स है दोस्तों, वो आपको याद रखने का है। सबसे पहले लिखा है EDG। EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अवेलेबल है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा? तो टर्सरी, उससे कम डिक्रीज करेगा सेकेंडरी, उससे कम डिक्रीज करेगा प्राइमरी, और सबसे कम कौन होगा दोस्तों? तो जिसके अंदर सिर्फ CH3 ग्रुप होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा वो लेस एसिडिक होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, बराबर, वो ऑलवेज क्या करेगा? तो विच इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और आयोडीन वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखने का दोस्तों, ऑर्थो इफेक्ट। तो लिखा है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड regardless of the nature of electron donating group either electron withdrawing group of substituents। मतलब अगर मेरे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर से दोस्तों मैंने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं। तो 14 नंबर के एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे, बराबर। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक? तो पहला ऑप्शन है अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड। तो सब हर एक के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दोस्तों। एसिडिक एसिड का मतलब होगा CH3COOH, और अल्फा क्लोरो मतलब यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा और Cl डालूंगा, इसको बोलूंगा अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड। ऑप्शन बी
अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब दो हाइड्रोजन निकाल के दो Cl डाला, इसको मैं बोलूंगा अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर 3 Cl निकाल के मैं क्या करूंगा दोस्तों, 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 Cl डालूंगा, तो उसको बोलूंगा अल्फा 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 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और लास्ट वन जो है वो है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, बराबर। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले देखो कौन सा ग्रुप अवेलेबल है दोस्तों, Cl है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एज द नंबर ऑफ Cl इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा आएगा कौन, आपका सी ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उससे वीक एसिड होगा 2 Cl वाला, उससे वीक होगा 1 Cl वाला, और सबसे वीक होगा कौन, CH3COOH। तो ये होगा आपका मोर एसिडिक और ये होगा आपका लेस एसिडिक। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था आपका 14th क्वेश्चन। इसमें मोर पूछा है इसलिए आपका सी आंसर आएगा, अगर इसमें लेस पूछते तो आपका आंसर होता डी। अब 15th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। Which of the following compound is more acidic? अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। दोस्तों ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब क्या, 4 कार्बन, और यहाँ पे CH3 CH2 CHCl, ये आपका ऑप्शन ए है। दूसरा ऑप्शन है बीटा क्लोरो, तीसरा ऑप्शन है आपका गामा क्लोरो, मतलब ये Cl को ORX लेफ्ट साइड ले जाओ, और लास्ट में पूछा है आपको कौन, ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2COOH। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो दोस्तों अल्फा, ये Cl देखो, Cl कौन सा है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो जितना वो नजदीक रहेगा, अल्फा पोजीशन सबसे ज्यादा नजदीक होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, गामा होता है, राइट। तो अल्फा पोजीशन पे वो नजदीक में COOH के है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, बराबर। और सबसे कम एसिड पूछा होगा तो आपका ब्यूटेनोइक एसिड होगा। तो मोर एसिड पूछा होगा तो मोर एसिडिक कौन होगा, आपका ऑप्शन ए, और लेस एसिडिक कौन होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सपोज 15 क्वेश्चन जैसा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, फिर यहाँ ऐसा पूछा है अल्फा ब्रोमो, फिर ऐसा पूछा है अल्फा आयोडो, और फिर ऐसा पूछा है अल्फा फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा, तो आप देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जिसमें फ्लोरीन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और हर एक में पोजीशन कौन सा है दोस्तों, अल्फा पोजीशन पूछा है, तो ये आपका मोर एसिड होगा, और आयोडीन वाला कैसा होगा आपका लेस एसिडिक। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को वो लोग चेंज भी कर सकते हैं, समझ में आई बात। तो अब हम बात करेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो 16 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक। और पहला ऑप्शन है आपका अल्फा मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा, अल्फा मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो दोस्तों पेंटेनोइक एसिड का मतलब 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे CH3, बराबर। ये उसका स्ट्रक्चर होगा ऑप्शन ए का। ऑप्शन बी का स्ट्रक्चर क्या पूछा, बीटा मिथाइल, मतलब ये CH3 को यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका बीटा मिथाइल। इसके बाद आपको सी ऑप्शन में पूछा है गामा मिथाइल, मतलब इसको यहां डाल दो। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन, ये डेल्टा पोजीशन, बराबर। और ऑप्शन डी जो पूछा है आपको पेंटेनोइक एसिड, इसमें कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो दोस्तों हमको पता है मिथाइल ग्रुप जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे
तो वो वीक एसिड होंगे। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ आपका मोर एसिडिक जो है ये आंसर आएगा। और लेस एसिडिक, तो मिथाइल ग्रुप जितना नजदीक होता है वो लेस एसिडिक होगा, तो ये आपका होगा लेस एसिडिक। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए क्या चेक करने का, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंस है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंस है। ओके दोस्तों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following compound is less acidic। यही ऑप्शन है 16 के बाद 17 क्वेश्चन। लेस एसिडिक कौन है इसके अंदर, ऐसा पूछा है। बोलो दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने लेस एसिडिक, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, बराबर। अब इसके अंदर कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सपोज मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3C CH3 CH3COOH, दूसरा है CH3CH CH3COOH, तीसरा है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, और लास्ट वन है मेरे पास एसिडिक एसिड। तो बोले इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, बराबर। यहाँ CH2 के बाजू में एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप है ही नहीं CH3 के बाजू में, राइट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये रहेगा, मोर एसिडिक अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। और सबसे वीक एसिड कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? वीक एसिड। मतलब लेस एसिडिक पूछा तो आपका ये होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, वो लेस एसिडिक होगा। और मोर एसिडिक पूछा तो कौन होगा? एसिडिक एसिड। ओके दोस्तों, आपके सामने ऑलरेडी मैंने स्ट्रेंथ मेंशन किया गया है। तो ये हुआ आपका 16 और 17 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। Which of the following compound is more acidic? तो ज्यादा एसिडिक कौन है? Which of the following compound is more acidic? ऐसा क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो more acidic compound कौन होते हैं? तो more acidic compound, which of the following compound is more acidic? 18th क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो ए है वो लिखा है prop 2-ine guanoic acid। मतलब मेरे पास COOH ग्रुप है, 2-ine का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन बी जो है वो है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH। ऑप्शन सी जो है वो है आपके पास prop 2-ine। इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ आएगा CH। और ऑप्शन डी है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। तो दोस्तों, ये डिसाइड करने के लिए मुझको चेक करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बन के साथ जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बन के साथ जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ जुड़ा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहाँ पे भी ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइब्रिडेशन होगा sp3। देखो, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, डबल बॉन्ड मतलब sp2, यहाँ डबल बॉन्ड मतलब sp2, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है CH3 के आगे पीछे, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। तो दोस्तों, जितना लेस हाइब्रिडाइजेशन उतना मोर एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो मोर एसिडिक कौन होगा? आपका ए। और लेस एसिडिक कौन होगा? आपका डी, बराबर। क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर से भी हमको डिसाइड करने का है, लेकिन चेक कैसे करने का? कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बन के साथ जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। अब देखो, ये दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं तब देखने का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन prop 2-ine guanoic एसिड। तो ये सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? आपका ए ऑप्शन। और लेस एसिडिक कौन होगा? डी ऑप्शन, बराबर। 18 के बाद 19 क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा है कि which of the following compound is less acidic। तो आपका आंसर कौन होगा? डी, एसिडिक एसिड। 18 के बाद आपका क्वेश्चन होगा 19, बराबर।
अब 20 नंबर का क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक? मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन ए मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये होगा। ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर हो जाएगा COOH। ऑप्शन सी प्रोपेनोइक एसिड CH3COOH, CH3CH2COOH। और ऑप्शन डी जो है आपका एसिडिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके बाजू में मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, मतलब फॉर्मिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फॉर्मिक एसिड कैसा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी सब के बारे में तो यहाँ अभी हमने बात की बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड में बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है इसकी कंपैरिजन में, एसिडिक एसिड की कंपैरिजन में। और एसिडिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के बारे में बात करो तो प्रोपेनोइक एसिड वीक एसिड होगा। इस सबसे ये 20वें क्वेश्चन में पूछा मोर एसिडिक तो आपका आएगा कौन सा? फॉर्मिक एसिड। और लेस एसिडिक पूछा होता तो आपका आंसर आएगा कौन? ये प्रोपेनोइक एसिड। इज इट क्लियर दोस्तों? तो ये 20 क्वेश्चन तक हमने ये बात की। अब हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। Now friends, we have to discuss about the ortho effect, मतलब ortho, meta and para substituted derivatives of benzoic acid। तो ये आपका ortho नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये है आपका पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और ये है बेंजोइक एसिड। और 21 नंबर का क्वेश्चन है which of the following compound is more acidic। तो दोस्तों ऑर्थो इफेक्ट में हमने अभी पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, बराबर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो ये आपका होगा मोर एसिडिक, बराबर। अब आप चेक करो एनोडो ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब पैरा एंड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड की कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होंगे। तो सबसे ज्यादा लेस एसिडिक कौन हो जाएगा? आपका बेंजोइक एसिड। अब ये दोनों की कंपैरिजन करो कि कौन पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो जो एनोडो ग्रुप है उसका माइनस आई इफेक्ट है, साथ में प्लस आर इफेक्ट है। ये दोनों पैरा पोजीशन के ऊपर एक्टिव होती है और एनोडो का माइनस आई इफेक्ट पैरा पोजीशन पे एक्टिव है, लेकिन माइनस आर इफेक्ट जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर एक्टिव होती नहीं है। मतलब पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये चारों चार की बात करें तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके बाद होगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर आएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और सबसे वीक होगा बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों एग्जाम में आपको इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो स्मॉल कौन है? डी, फिर लेस देन सी, फिर लेस देन बी, फिर लेस देन ए। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा तो बिगर टू स्मॉलर लिखने का, तो ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, बराबर। तो इस तरह से दोस्तों आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो बेंजोइक एसिड के क्वेश्चन आंसर पूछते हैं फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट, अभी हमने 21 और 22 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जिसमें नाइट्रो डेरिवेटिव्स थी। अब 23 और 24 के बारे में बात करेंगे, उसमें क्लोरो डेरिवेटिव्स है, मतलब एनओ की जगह पे Cl ग्रुप अवेलेबल है, बराबर। अगेन Cl ये है आपका ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड और वो बेंजोइक एसिड। अब ये जो Cl है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बराबर। तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वो क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। तो ये आपका हो जाएगा मोर एसिडिक। तो 23 के हिसाब से ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड स्ट्रांग एसिड हो जाएगा, और वीक एसिड पूछे तो क्या होगा? लेस एसिडिक पूछे तो कौन होगा? बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि ये Cl ग्रुप है, वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इज इट क्लियर?
अब ये दोनों के बारे में बात करें कि भाई ये दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन, कम एसिडिक कौन, तो इसका माइनस आई इफेक्ट है, साथ में प्लस आर इफेक्ट होता है। जैसे NO2 ग्रुप था उसमें माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट था, लेकिन इसमें माइनस आई और प्लस आर का मतलब रेजोनेंस, और इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, प्लस आर इफेक्ट एप्लीकेबल होता नहीं है। कौन सी पोजीशन के ऊपर? मेटा पोजीशन के ऊपर। याद रखने का, मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस आर इफेक्ट हो, इधर माइनस आर इफेक्ट हो, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वो कभी भी एक्टिव होता नहीं है। वो एक्टिविटी सिर्फ पैरा पोजीशन के ऊपर दिखाता है। इसलिए मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड जो है वो कैसा है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसकी कंपैरिजन में? पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड की कंपैरिजन में, राइट। तो अब आपको पूछे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो स्मॉल कौन होगा? डी बेंजोइक एसिड, फिर आएगा कौन आपका? पैरा क्लोरो मतलब सी आएगा, फिर आएगा मेटा क्लोरो मतलब बी ऑप्शन, और फिर आएगा ए ऑप्शन ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। और अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो उसको लिखेंगे बिगर टू स्मॉलर, तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर खास करके कंपटीशन एग्जाम लाइक जेईई में पूछते हो लोग। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे मिथाइल डेरिवेटिव्स के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, हमारे सामने 25 और 26 नंबर के क्वेश्चन अवेलेबल है पीडीएफ के अंदर। उसके पहले हमने जो बात की वो नाइट्रो बेंजोइक एसिड और क्लोरोबेंजोइक एसिड के बारे में बात था। अब हम बात करेंगे मिथाइल बेंजोइक एसिड के बारे में। तो ये अपना ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड और ये पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? तो ऑलवेज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, ड्यू टू व्हाट? ऑर्थो इफेक्ट। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो अपने को देखने का नहीं है। मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये कैसा होगा? मोर एसिडिक होगा, बराबर। अब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसलिए बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ये दोनों की कंपैरिजन में, बराबर। अब आएगा क्या दोस्तों? ये जो CH3 ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट है? तो प्लस आई इफेक्ट। यहां पर भी CH3 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा पोजीशन पे एक्टिव होगा और यहाँ पे मेटा पोजीशन के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन एक्टिव होता नहीं है। मतलब सबसे वीक एसिड कौन होगा? तो पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड वो कैसा होगा आपका? लेस एसिडिक होगा, और मोर एसिडिक होगा कौन सा? ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो आपका 25 के अंदर आंसर आएगा कौन सा? ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। 26 में आंसर आएगा आपका कौन सा? मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड। पीडीएफ में आपको सी ऑप्शन लिखा है, बराबर। ओके, अब इसमें के अंदर आपको पूछे इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर, कैसे लिखेंगे? तो D लेस देन C लेस देन B लेस देन A। और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? तो बिगर टू स्मॉलर, कैसे? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, बराबर दोस्तों। तो मैंने मेरे हिसाब से दोस्तों आपको एसिडिक स्ट्रेंथ समझाने की बात की है, इस सभी क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से देखने का। ओके फ्रेंड्स, और अब हम आखिरी टॉपिक जो है वो aldol, क्रॉस aldol एंड कैनिज़ारो रिएक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस aldol, कैनिज़ारो एंड क्रॉस aldol कंडेंसेशन। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, which of the following pair of compound gives aldol condensation? दोस्तों aldol कंडेंसेशन को सेल्फ aldol कंडेंसेशन भी बोलते हैं, और ये कंडेंसेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहले वो समझ लेते हैं। कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए और उसके बाजू में अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन सेम होने चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये तीनों कंडीशन होगी, पहले कार्बोनिल कार्बन होगा, उसके बाजू में अल्फा कार्बन होगा,
और अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम होंगे वही क्या करेंगे, सेल्फ ऑर्बिटल कंडेंसेशन देंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर मैं तीनों इक्वेशन भी समझा दूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी बराबर, और उसके साथ आपका थियरी का कॉन्सेप्ट भी होता रहेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया आपको ये CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब CH3CHO एसिटाल्डिहाइड दिए हैं दोनों मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन होगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। पहले चेक करो कि क्या ये कंडीशन सेल्फ ऑर्बिटल का है, दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, दोनों में अल्फा कार्बन है, और दोनों में अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो ये कंडीशन में आपका सेल्फ ऑर्बिटल कंडेंसेशन होगा। उसमें जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है वहां से हाइड्रोजन जाएगा O के साथ, और ये O का कन्वर्जन OH में कर देगा। देखो ये H जुड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या हो गया OH। अब यहाँ हो गया क्या, CH3 में से एक H गया तो बाकी रहा CH2, तो वो ज्वाइंट होगा यहाँ और मिलेगा CHO। इसका नाम क्या होगा, तो नंबर 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O, and we can get CH3 CH डबल बॉन्ड CH इसका नाम होगा ब्यूट। नंबर दे दो 1 2 3 ब्यूट 2 in 1 R, मतलब ये होगा आपका एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ ऑर्बिटल कंडेंसेशन। अब आपको ऑप्शन बी जो दिया है वो है कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पहले चेक करो कि क्या ये सेल्फ ऑर्बिटल फॉलो अप करेगा, दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, यस है, दोनों में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 3 3 दोनों साइड पे सेम है, मतलब ये सेल्फ ऑर्बिटल कंडेंसेशन देगा। रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ से एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होके OH बना देगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये CH3 ये C का कन्वर्जन यहाँ हो गया OH, ये CH3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ ज्वाइंट होगा ये पार्ट CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम बनाओ तो 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, फिर होगा क्या पेंटेन 2 1, क्योंकि कीटोन का रिएक्टिविटी दोनों से ज्यादा इसलिए नंबर यहां से दिया जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से। एंड व्हेन इट इज हीटेड तो वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा और ये दोनों के बीच में बॉन्ड इंक्रीज होगा, तो वी कैन गेट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब वापस नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड का नंबर दे दो 1 2 3 4, इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 1, 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 1। तो ये हो गया आपका सेल्फ ऑर्बिटल कंडेंसेशन किसका, एसीटोन का। अब सी ऑप्शन जो दिया है उसके ऊपर फोकस करते हैं। वो सी ऑप्शन ऐसा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल, तो दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, दोनों में अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है, मतलब ये सेल्फ ऑर्बिटल कंडेंसेशन का कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो अल्फा कार्बन ही हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, यहाँ से H जाएगा और O का कन्वर्जन हो जाएगा OH में। तो ये जो पार्ट है CH3 CH2 CH OH, यहाँ हो गया OH और ज्वाइंट अल्फा कार्बन ही होगा, तो अल्फा कार्बन के आगे वाला जो पार्ट है वो ब्रांच में आ जाएगा, ये CH3 चला गया ब्रांच में और यहाँ मिलेगा CHO। अब इसका नोमेनक्लेचर बनाओ, अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है,
बराबर। तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। और जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिबरेट होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड इंक्रीज होगा, वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। और इसका नाम होगा, नंबर दे दो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट है, बॉन्ड को नंबर दे दो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 आल। अगर कोई पेंट 2 इन आल लिखेगा तो भी चलेगा, मतलब ये तीनों कंपाउंड रिएक्शन देते हैं, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। कौन, ऑल आर एबल टू गिव aldol कंडेंसेशन। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछे थे आपको, तीनों ऑप्शन ऐसे दिए थे जो सेल्फ aldol कंडेंसेशन दे, तो थियरी भी आपके साथ में मैं डिस्कस कर सकूं। तो आंसर क्या होगा आपका डी, ऑल आर एबल टू गिव aldol कंडेंसेशन। ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss 28 number MCQ। 28 नंबर MCQ जो है, लिखा है which of the following pair of the compound gives Cannizzaro condensation। पहला ऑप्शन लिखा है all, फिर दूसरा ऑप्शन जो है, तो हम पहले ऑप्शन लिखा हुआ है all, राइट। दूसरा ऑप्शन जो लिखा है फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स दिए, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो दोस्तों कैनिज़ारो कंडेंसेशन की कंडीशन समझ लो, कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, उसके बाजू में अल्फा कार्बन एब्सेंट होना चाहिए। आइदर कार्बोनिल कार्बन होगा जिसके बाजू में अल्फा कार्बन होगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। 2 कंडीशन है, नंबर 1 कार्बोनिल कार्बन एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंस है तो उसके बाजू में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए नहीं। यही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं दोस्तों, कैनिज़ारो कंडेंसेशन देते हैं। तो कैनिज़ारो कंडेंसेशन में इसमें कार्बोनिल कार्बन है दोनों में, लेकिन अल्फा कार्बन ही नहीं है, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कैनिज़ारो कंडेंसेशन देंगे। तो 50% NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो कोई एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन से दोस्तों हमको मिलेगा अल्कोहल और ऑक्सीडेशन से मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसका रिडक्शन हुआ तो समझ लो अल्कोहल मिल गया, और ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा आपको, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ एक कार्बन है तो मुझको मिल गया मिथेनॉल रिडक्शन से, और उसका ऑक्सीडेशन से क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सी ऑप्शन चेक करो दोस्तों, बेंजाल्डिहाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH प्लस बेंजीन के ऊपर क्या, C डबल बॉन्ड OH। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH प्लस बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH। देखो दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये बेंजीन का अल्फा कार्बन है लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कंडीशन में वो कैनिज़ारो कंडेंसेशन देगा, तो यहाँ मिलेगा 50% NaOH के साथ रिएक्शन से इसका अगर रिडक्शन होगा तो वी कैन गेट बेंजाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन से मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बेंजोइड जिसको बोल सकते हैं। कोई टेक्स्ट बुक में यहाँ सोडियम सॉल्ट निकाल के इसका आगे रिएक्शन किया HCl के साथ तो बेंजोइक एसिड ऐसा वर्ड भी लिखा हुआ है, बराबर। और डी ऑप्शन जो है उसमें एक मॉलिक्यूल दिया है आपको बेंजाल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल दिया है फॉर्माल्डिहाइड। इसमें आप देख सकते हो, इसमें कार्बोनिल कार्बन के बाजू में अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें कार्बोनिल कार्बन के बाजू में अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये दोनों में सिमिलर कंडीशन था, दोनों में कार्बोनिल कार्बन था,
अल्फा कार्बन नहीं था। ये दोनों में कार्बोनिल कार्बन था, अल्फा कार्बन भी था, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। इसमें दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन पहले वाले में अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ अल्फा कार्बन ही एब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशन में भी केनिज़ारो रिएक्शन फेवरेबल होगा, लेकिन याद रखने का जो बिगर मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन होकर अल्कोहल मिलेगा, मतलब बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा प्लस सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई नीट में पूछा हुआ है, याद रखने का। बेंजाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड का केनिज़ारो रिएक्शन से क्या मिलेगा? बेंजाइल अल्कोहल, जिसका दूसरा नाम है फिनाइल मिथेनॉल, प्लस क्या? सोडियम फॉर्मेट। तो उस आपका मतलब आएगा आंसर क्या? ए। सभी लोग क्या करेंगे? ये रिएक्शन देंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने दोस्तों जानबूझ के ऐसे निकाला था। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन मुझको आपको एक्सप्लेन करने का था कि हाउ द केनिज़ारो रिएक्शन विल फेवर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम 29 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 29, and the question number 29 is which of the following pair of compound gives cross aldol condensation? क्रॉस aldol condensation कौन देगा? तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है आपका CH3 CH2 CHO C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। दोस्तों क्रॉस aldol का बेसिक कंडीशन समझ लो, दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल्स में अल्फा कार्बन होना चाहिए, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन सेम होते नहीं हैं। क्या सेम नहीं होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। याद रखो, कंडेंसेशन, aldol कंडेंसेशन हो, केनिज़ारो हो, आइदर क्रॉस aldol कंडेंसेशन हो, वो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही होता है। बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशन के ऊपर वो रिएक्शन कभी होते नहीं है। तो अब इसका मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करूंगा, तो यहाँ से अल्फा कार्बन एक H को रिलीज करेगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ हो जाएगा OH और ये CH2 ज्वाइंट हो जाएगा। इसका अगर मैं IUPAC नेम बनाऊं तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तीसरे के ऊपर OH मतलब हाइड्रोक्सी, और जब इसको हीट किया जाएगा तो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा और ये दोनों के बीच में बॉन्ड इंक्रीज होगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या? पेंट 2 in 1 R, आइदर पेंट 2 in R। तो ये हो गया आपका दोस्तों क्रॉस aldol कंडेंसेशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन जो बी है वो दिया गया है ऑल। ऑप्शन सी में मैंने लिखा है बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH प्लस एसिडोफिनॉल, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें दोनों के पास कार्बोनिल कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। ये कंडीशन में भी क्रॉस aldol कंडेंसेशन होगा, डाइल्यूट NaOH। यहाँ से एक H ज्वाइंट होगा इसके साथ, तो यहाँ मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर ACH, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ये शिफ्ट होके O के पास जाएगा, ये हो जाएगा OH, और ये CH2 यहाँ ज्वाइंट होगा, तो CH2 CO और बेंजीन। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर के ऊपर हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। फर्स्ट और थर्ड के ऊपर फिनाइल है, तो 1 3 डाइफिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, प्रोपेन 1 ऑन, ये उसका IUPAC नेम होगा। और जब इसको हीट किया जाएगा आगे, तो H2O लिबरेट होगा, यहाँ से OH और H माइनस हो जाएगा H2O, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, वी कैन गेट बेंजीन, फिर CH डबल बॉन्ड CH CO और बेंजीन। तो इसका IUPAC नेम करेंगे, तो यहाँ कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो यहीं से नंबर 1 2 3, बॉन्ड को नंबर दे दो 1 2,
तो यहाँ होगा 1,3 डाइफिनाइल prop 2 in 1 on, prop 2 in 1 on। तो ये हो गया दोस्तों। सी में भी आपको क्या मिलेगा, क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन, और जो डी ऑप्शन है उसमें एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है बेंजाल्डिहाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल दिया है मैंने एसिटाल्डिहाइड का। वापिस डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगा, ये अल्फा कार्बन H को लिबरेट करेगा, मिलेगा क्या बेंजीन के ऊपर CH CH2 CHO, नंबर दे दो 1 2 3, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, और व्हेन इट इज हीटेड यहां से OH और H चला जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा और ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड इंक्रीज होगा। यू कैन गेट बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम होगा 1 2 3, यहां से नंबर 1 2, तो नाम होगा 3 फिनाइल prop 2 in 1 आल, prop 2 in 1 आल। तो दोस्तों इसका कॉमन नेम दूसरा ये भी है, सिनेमाल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है दोस्तों, एक और सिनेमाल्डिहाइड। अब दोस्तों इसको जर्नली हम क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन बोलते हैं। ये तीनों ने दिया, मतलब ऑप्शन के हिसाब से आंसर आएगा आपका बी, ऑल आर एबल टू गिव दिस रिएक्शन। लेकिन पर्टिकुलर ये जो डी ऑप्शन है उसको हम क्लेसन स्मिथ रिएक्शन भी बोलते हैं, इधर शॉर्टकट में इसको क्लेसन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। याद रखने का, क्लेसन कंडेंसेशन में क्या होगा, वो एक क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, इधर एलिफेटिक कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पे ये रिएक्शन आप अगर ये कीटोन के साथ करो तो भी ये रिएक्शन आगे पॉसिबल होगा। तो ये कंडीशन को हम क्लेसन कंडेंसेशन बोलते हैं, लेकिन क्रॉस ऑर्बिटल में भी उसको कंसीडर किया जाता है। तो याद रखने का, ये पर्टिकुलर डी ऑप्शन का नाम क्लेसन हो सकता है, बराबर। तो दोस्तों जानबूझ के वापस मैंने यही क्वेश्चन निकाला जिसमें मैं आपको थियरी कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकूं। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स हमने ये जो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सबसे पहले टॉपिक हमने लिया कौन सा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, टॉलेंस टेस्ट, फेलिक टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड पॉप-ऑफ रूल। उसके बाद हमने टॉपिक लिया आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद हमने टॉपिक लिया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट टॉपिक हमने कंसीडर किया कौन सा, aldol कंडेंसेशन, क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन एंड केनी-ज़ारो कंडेंसेशन। तो दोस्तों मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से टॉपिक समझाने की बात की है आपको, बराबर। आप अपनी ये जो मेरी यूट्यूब चैनल है अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, बराबर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बराबर। और इससे आपको बेहतर एडवांटेज रहेगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। Dear students, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration, in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only rupees 999 rupees per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.